Hello students. In the last video we have started the lesson. The name of the lesson you will learn about it, statistics. In this lesson we have seen some basic concepts. After that I have started for finding the mean. There are three methods. First method I told you, direct method. After that assumed mean method. Third one is the step deviation method. From those three methods, yesterday we have completed one method. Today we are going to discuss about the next method of this lesson, or we can say for finding the mean, that is known as the assumed mean method. How to find out the mean of the given data by using assumed mean method, that we are going to discuss today, that we are going to see today. Here there is one example I have written in front of you. By using this example I will tell you how to find out the mean of the given data by using assumed mean method. Okay, here look here, what is the example? Find the mean of the following data. Here this data is given by assumed mean method. Yesterday I told you there will be in the question only, there will be specific identification like that. They will give us the name of method. If method name is not given, then you are free, you can use any method, no problem at all for finding the mean. Okay, now how to solve by using this method, that I am going to explain. Before explaining, I want to tell you the method which we have studied yesterday means direct method. If you are perfect into the direct method, then 100% you can solve example by using this method also, because in this method we are not going to do anything different. We will use only small different things. Okay, means not a bigger one, only small changes we are going to do, and by using those small changes we will try to understand this method. Okay, I will start. Look here, solution. As I told you yesterday, in the direct method we have drawn how many columns? 4 columns were there. From those 4 columns, already 2 columns are given to us. First one is the class interval, second one is the number of students. Okay, by using those 2 columns we will draw here also, today also. Here yesterday we have seen 4 columns. Yes, already 2 are given, we have drawn 2 columns extra, means total 4 were there, but today we will draw here 5 columns, means already 2 given, we will draw here 3 columns, means only 1 column we have to add into this example. Then we will understand, we will try to get the idea about the assumed mean method. Okay, like yesterday we will continue this example, listen and try to understand. Okay, look here, first column that is given here, class interval, that only we will draw here, class interval, first column. Second one, here it is given number of students, number of students. Okay, number of students. Yesterday third and fourth column which we have taken class mark, and last one is the FI XI. ओके, पहले हम ये 2 कॉलम एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं, जैसे हमने कल कॉपी किया था. 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55 एज इट इज़, ये हम कॉपी कर रहे हैं इधर. ओके, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, and next one 85 to 100, and there will be. Okay, and yesterday we did like that way only. Here we have written total. Then frequencies, here this number is also known as what? Frequency. हमने कल लिखा था इधर FI, आज भी हम इधर FI लिखने वाले हैं, कोई चेंज नहीं है. 2, 3, 7, 6, 6, 6. Okay, then finally here we are writing summation of FI. Summation of FI means what? Sum of those all numbers. Okay, now take sum of those all numbers. What you will get? See, sum क्या आती है, देखो इधर तुम्हें समझ में आएगा. sum आएगी 30. What is the sum we got? 30. Okay, next, as usual yesterday we have taken third column, that is of class mark. क्या था?
class mark, and this class mark we have shown by using letter, you know that very well, xi. Okay, class mark means what? Lower limit plus upper limit of that respective class. What I said, once again I repeat, look here, lower limit plus upper limit divided by 2. Okay, lower limit plus upper limit divided by 2. Lower limit what is 10 plus upper limit 25 divided by 2, यानी कि 35 divided by 2 कितना आएगा? 17.5. Okay, yesterday I told you what is the formula of class mark. That formula we have to use here, and we have to find out class mark of those all classes. And when we will find the class mark of all the classes, we will get here what we will get. See, next classes class mark I will write here 32.5, then next 47.5, then next 62.5, then next 77.5, and then next 92.5. Okay, then next what? 92.5. Here we will not take any summation or any addition, as it is ऐसे लिखेंगे. अभी जो एक्स्ट्रा कॉलम हम ऐड करने वाले हैं वो कॉलम मैं अभी दिखा रहा हूँ, यानी कि इधर टोटल होंगे 5 कॉलम्स. कितने होंगे? देखो इधर 1, 2 and 3 ऑलरेडी yesterday we have seen. अभी जो कॉलम मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, अभी जो कॉलम मैं इधर लिखने वाला हूँ, दैट इज द न्यू कॉलम, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, what is that column? Look here. Here we will find out the column of difference, that is known as di is equal to, इसको भी फॉर्मूला है xi minus a. di is equal to xi minus a. What is formula? di is equal to xi minus a. अभी ये di क्या है और ये क्या है? ओके, डी आई फाइंड आउट करना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ए इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. व्हाट इज मीन बाय ए? दैट इज नोन एज अज्यूम्ड मीन, यानी कि वी हैव टू कंसीडर वन मीन फ्रॉम दिस क्लास मार्क्स. क्या करना है देखो, उसका मतलब क्या है? ये जो ए है, ये क्या करते हैं हम? अज्यूम करते हैं. अज्यूम करते हैं यानी कि क्या? हम उसको कंसीडर करते हैं. ओके, हमें उधर क्या करना है? एक नंबर हमें इधर फिक्स कर लेना है. किससे वो नंबर फिक्स कर लेना है? ये जो क्लास मार्क का जो ग्रुप, ये जो कॉलम है, इस क्लास मार्क के कॉलम में से हमें ये नंबर फिक्स कर लेना है. ओके, दैट इज नथिंग बट ए. दैट इज नोन एज अज्यूम मीन. ओके, अज्यूम मीन ऑफ दिस वन, यानी कि क्लास मार्क में से हमें वो मीन अज्यूम करना है. तो अज्यूम कैसे करना है? देखो इधर देखो, अभी कितने मीन है क्लास मार्क से? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये भी एक टाइप का मीन ही है, क्योंकि हमने क्या किया है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 किया है, तो एवरेज ऐसे ही निकालते हैं. उसको भी मीन हम बोल सकते हैं. जनरली मीन हम ऐसे ही निकालते हैं. तो इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है. जब 6 नंबर्स होते हैं, तो 6 नंबर्स जब होते हैं, तो 6 नंबर में से जब तुम मीन कंसीडर करने जा रहे हो, कौन सा भी नंबर अगर लोगे तो करेक्ट ही आंसर आता है. लेकिन हमें जब हम आंसर निकालने वाले हैं, तो आंसर निकालते वक्त कुछ प्रॉब्लम ना आए, ईजिली हम वो एग्जाम्पल सॉल्व कर सके. इसीलिए तुम क्या करो, जब 6 नंबर्स दिए है, तो ये जो 3 नंबर्स का थर्ड पॉइंट पे जो क्लास मार्क दिया है, अदरवाइज फोर्थ पॉइंट पे जो क्लास मार्क दिया है, उसमें से एक को क्या करो? ए कंसीडर करो. ये हमें कंसीडर करना होता है. ओके, इधर कोई भी तुम्हें क्लू नहीं देगा. ये हमें क्या करना है? आफ्टर फाइंडिंग द क्लास मार्क. इसीलिए द क्लास मार्क्स विच यू आर गोइंग टू फाइंड आउट, दोज क्लास मार्क मस्ट बी एक्यूरेट वन. जो क्लास मार्क तुम फाइंड आउट करने वाले हो बाय यूजिंग दोज क्लासेस, वो एक्यूरेट ही होनी चाहिए. अगर क्लास मार्क में कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, तो पूरा ये कॉलम गलत होगा, आगे का कॉलम भी गलत हो जाएगा. ओके, तो क्लास मार्क अच्छी तरह से फाइंड आउट करने के लिए हमें वो ध्यान से देखनी पड़ेंगे. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? नाउ लुक हियर, व्हाट यू विल डू, वी विल कंटिन्यू दिस एग्जाम्पल. मैंने हमको अभी तुमको बताया, अभी ये 6 नंबर से 6 जब होते हैं, 6 ऐसे जब नंबर होते हैं, तो थर्ड और फोर्थ, थर्ड या फोर्थ, और मैं बोल रहा हूँ दोनों भी नहीं है, थर्ड और फोर्थ, इन दोनों में से एक नंबर को क्या करो? ए कंसीडर करो. अगर 7 नंबर्स है, अभी इधर समझो 1, 2, 3, 4 और एक नंबर इधर है और 7 है, तो 7 नंबर्स अगर हो, तो बीच में का जब जो नंबर होता है, वो बीच में का नंबर क्या करो? यू ट्राई टू कंसीडर दैट इज द वैल्यू ऑफ ए. समझ में आ रहा है? ओके, यानी कि मिडल नंबर ऑलवेज यू ट्राई टू गेट द ट्राई टू कंसीडर द वैल्यू ऑफ ए. ओके, तो मैं अभी इधर लिखने वाला हूं. देखो, डी आई इज इक्वल टू
एक्स आई माइनस ए। एक्स आई की वैल्यू ऑलरेडी इधर हमें दी है सारी, ये जो एक्स आई की वैल्यूज़ है, और ए हमने क्या कंसिडर किया अभी 47.5 और 62.5, ये दो नंबर्स हमारे पास ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, तीसरा या फोर्थ नंबर का, तो हम 47.5 को ए कंसिडर इधर करते हैं। ये हम पे निर्भर करता है कौन सा नंबर हम लेने वाले हैं। ओके, आई हैव कंसिडर हियर 47.5 इज द ए। तो बाद में क्या करना है, देखो ये फॉर्मूला है, इधर डी आई फाइंड आउट करना है, तो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 47.5। अभी देखो एक्स आई की पहली वैल्यू क्या है, देखो 17.5, तो इधर 17.5 पुट करना है, यानी कि मैन्युअली इधर लिखना नहीं है, तुम रफ में करके इधर डायरेक्ट आंसर लिखने हैं। ओके, तो डी आई इज इक्वल टू कैसा है, देखो एक्स आई की वैल्यू पहली क्या है 17.5, 17.5 माइनस 47.5। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? पहली वैल्यू क्या है एक्स आई की 17.5, 17.5 माइनस अभी माइनस क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला है उसका डी आई का, एक्स आई माइनस ए हमने ये कंसिडर किया, तो पहली वैल्यू है 17.5 माइनस ए 47.5, एंड यू विल गेट हियर आंसर इन द माइनस। ये आंसर तुम्हें माइनस में आएगा। जब तुम सब्ट्रैक्शन करते हो तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद इधर तुम्हें आंसर आएगा -30। ओके, नेक्स्ट एक्स आई की वैल्यू क्या है, देखो नेक्स्ट 32.5 इधर पुट करना है, 32.5 माइनस 47.5। ओके, दैट इज नथिंग बट व्हाट -15। नेक्स्ट वन, थर्ड वैल्यू क्या है, देखो 47.5, 47.5 माइनस 47.5, यानी कि क्या आंसर आएगा 0। नेक्स्ट क्या है, देखो 62.5, 62.5 माइनस 47.5। ओके, 62.5 माइनस 47.5, यू विल गेट हियर आंसर 15। सब्ट्रैक्शन करके इधर आंसर लिखने हैं, 77.5 माइनस 47.5, ये सारे आंसर्स अभी क्या आएंगे, प्लस में आएंगे। 92.5 माइनस 47.5, यू विल गेट आंसर 45। इधर भी हम एडिशन नहीं करने वाले, ऐसे लिखने वाले। अभी समझ में आया? दिस इज द एक्स्ट्रा कॉलम विच वी आर गोइंग टू ऐड इन दिस टाइप ऑफ मीन, मीन्स इन दिस टाइप व्हाट इज अज्यूम्ड मीन मेथड, इसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम हम ऐड करते हैं। अभी ये जो लास्ट कॉलम है, इन द प्रीवियस मेथड वी हैव स्टडीड हियर, इधर हम एफ आई एक्स आई लिखते थे, अभी क्या लिखना है देखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इधर अभी एफ आई एक्स आई नहीं लिखना है, तो एफ आई डी आई लिखना है, एफ आई डी आई, यानी कि ए एफ आई, इसको इस इधर मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है। तो इधर इस कॉलम में हम क्या लिखेंगे, एफ आई डी आई। ओके, व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ एफ आई, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ आई एंड दिस इज डी आई। ये 2 से -30 को मल्टीप्लाई करके इधर, 3 से -15 को मल्टीप्लाई करके इधर। अभी इस टाइप के एग्जाम्पल में स्टूडेंट थोड़ा सा ग्रम्बलिंग करते हैं। ओके, मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स आर गेटिंग प्रॉब्लम वाइल सॉल्विंग दिस एग्जाम्पल। कौन सा प्रॉब्लम आता है, वो जल्दी में क्या कर देते हैं मालूम है तुमको, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इधर लिखते हैं। ओके, ध्यान से सुनो, इधर हमने क्या लिखा है, एफ आई डी आई, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ आई एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डी आई, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है। तो मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू -30, व्हाट वी विल गेट -60, -60। नेक्स्ट 3 इंटू -15, ओके, व्हाट विल गेट -45। नेक्स्ट 7 इंटू 0, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 दैट इज 0। 6 इंटू 15, व्हाट विल गेट 90। 6 इंटू 30, 180। 6 इंटू 45, व्हाट विल गेट 270। अभी इधर हमें उसका समेशन निकालना है, जैसे हमने कल एफ आई एक्स आई का समेशन निकाला था, वैसे ही इधर समेशन ऑफ एफ आई डी आई, समेशन ऑफ एफ आई डी आई। सम टाइम वी आर गेटिंग यर माइनस आंसर ऑल्सो, इधर माइनस आंसर भी आता है अगर माइनस नंबर्स बड़े हो गए थे। ओके, इसका अभी कैसे करना है देखो, इधर भी स्टूडेंट एडिशन करते वक्त गलती कर देते हैं। पहले क्या करना है, ये सारे प्लस जो नंबर है उनका एडिशन करो, बाद में इनका एडिशन करो, और इसमें से अगर ये नंबर बड़ा होता है तो इसमें से ये माइनस करो, अदरवाइज ये अगर नंबर बड़ा हो रहा है तो उसमें से ये माइनस करो। ओके, प्लस में से माइनस नंबर अगर स्मॉल है तो प्लस ही आंसर आएगा, अगर माइनस में से प्लस नंबर हमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और प्लस नंबर अगर स्मॉल है तो माइनस में आंसर आएगा।
ओके, इधर तुम्हें आंसर आएगा 435। कितना आंसर आ गया? 435। ओके, ये हो गया हमारा टेबल। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? मीन। मीन यानी कि एक्स बार। एक्स बार फाइंड आउट करने के लिए इधर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट, इधर जब हम एक्स बार का यानी कि मीन की वैल्यू जब फाइंड आउट करते हैं, एक्स बार का जब आंसर निकालते हैं, तो आंसर निकालने के लिए फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार। देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड आउट डी बार। नाउ डी बार इज इक्वल टू summation of fi di divided by summation of fi। फॉर्मूला कौन सा है देखो, डी बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi di डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। ओके, डी बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi di क्या है? 435 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi कितना है? 30। अभी डिवाइड करो, डी बार इज इक्वल टू ओके 435 डिवाइडेड बाय 30, यू विल गेट हियर आंसर 14.5। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एक्स बार यानी कि मीन। देन एक्स बार इज इक्वल टू व्हाट इज फॉर्मूला? ए प्लस डी बार। ए प्लस डी बार, ये ए कैपिटल में भी लिखा जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक्स बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है देखो, जो हमने इधर कंसिडर की थी, इधर देखो ए की वैल्यू हमने क्या लिखी है? 47.5। यानी कि तुम जो कंसिडर करोगे, अगर तुमने 62.5 लिया तो इधर 62.5 आएगा, लेकिन आंसर सेम ही आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 47.5 प्लस डी बार, डी बार हमारा कितना आ गया? 14.5। देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू, नाउ वी विल डू हियर एडिशन। आफ्टर डूइंग एडिशन वी विल गेट हियर आंसर 62। कल हमने यही एग्जाम्पल लिया था, उसका भी आंसर 62 ही आया था, क्योंकि सेम एग्जाम्पल है। इसका मतलब यह है कौन सा भी एग्जाम्पल तुम, कौन सी भी मेथड तुम ले लो, आंसर सेम ही आएगा, मीन सेम ही आएगा। हियर मीन इज 62। गॉट आइडिया? दिस इज नोन एज अज्यूम्ड मीन मेथड। तो ये दो मेथड तुम्हारे सिलेबस में इस साल दिए हैं। थर्ड जो मेथड है स्टेप डिविजन मेथड, वो इस साल डिडक्ट की है। तो ये दो मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल है मेरे ख्याल से। तुम ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करना है। एक ही इधर कॉलम हमने ऐड किया है, दैट इज़ नोन एज द डी आई। अगर वो समझ में आ गया, और थोड़ा सा हमने चेंज किया है फार्मूला में, यही है फार्मूला ए प्लस डी बार। डी बार फाइंड आउट करके डायरेक्ट इस फार्मूला में लिखा तो भी करेक्ट है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ये समझने के लिए दोनों भी इधर फाइंड आउट करके दिखाया है। ओके, रिमेनिंग एग्जाम्पल्स विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।